today we will discuss what are Lorentz forces. Now in physics, the Lorentz force is also known as electromagnetic force, and it is a combination of electric force and magnetic force on a point charge due to electromagnetic field. So force experienced by a charged particle in presence of both electric field as well as magnetic field is called a Lorentz force. Now अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी लगेगा. सो द टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू Fe प्लस Fm. Now we know that electric force on a charged particle moving in electric field is given by Fe is equal to Q into E. Similarly, magnetic force acting on a charged particle moving with velocity v in magnetic field is given by Fm is equal to Q into V cross B. These formulas we have already discussed in the previous lectures. So, the total force will come out to be QE plus Q into V cross B. So, the Lorentz force is equal to QE plus V cross B. Now we have to discuss two cases. The first case is that when velocity vector, electric field vector and the magnetic field vector, they all are collinear. Now we discussed earlier that suppose here we have a magnetic field. Now the force in magnetic field is given by Q into V cross B, which is equal to QVB sin theta. Now if the charged particle is moving in the direction of magnetic field, so this is velocity of charged particle, तो इन दोनों में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो. तो फोर्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो. So if V and B are collinear, then the force due to magnetic field will be equal to 0. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, Q into E, and it will accelerate that charge particle. So the conclusion is that there will be change in speed of particle because particle पे electric field अगर लगे तो वो उस particle को accelerate करवाता है, and no change in direction of motion. ये हमने किया था कि अगर कोई charge particle है उसकी direction of motion change करने के लिए magnetic field responsible होता है. So if these three are collinear, there will be change in only speed of particle due to electric force, and there will be no change in direction of motion because no magnetic force is acting. And the case second can be that when V, E and B are perpendicular. You can take it like this, that this can be the direction of magnetic field perpendicular to page of paper inwards. This can be the direction of electric field from upward to downward direction. And this can be the direction of velocity of charged particles. So here you can see that the three quantities, velocity vector, electric field and magnetic field, are all perpendicular to each other. Now this arrangement can be used as a velocity filter. अभी इसके बाद हम यही वाला टॉपिक करेंगे इसी लेक्चर में, that what is velocity filter. So in velocity filter, the velocity, electric field and magnetic field are perpendicular to each other. So net force on the particle can be made equal to 0 and there is no change in speed of particle. ये अभी हम डिस्कस करेंगे सारा सेटअप जो होगा velocity filter का. तो जो Lorentz forces हैं, they are used in devices like cyclotrons or other particle accelerators and velocity filters. एंड ये हमने दोनों डिटेल में इसी चैप्टर में स्टडी करने हैं, velocity filters and cyclotrons. Now we will discuss what is velocity filter. So this is a setup of velocity filter. अब फिज़िक्स में हमारे पास कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं involving moving charges where it is important that all the charges they should move with same velocity. अगर हमें कुछ चार्जेस चाहिए जो सारे सेम वेलोसिटी से मूव करें, एंड ये यूज़ होते हैं जैसे इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर. सो दिस कैन बी अरेंज्ड बाय अप्लाइंग perpendicular electric and magnetic fields.
जैसे आप इसके सेटअप में यहाँ देख सकते हो दैट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर प्लेट्स यूज़ की हैं दैट आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? डाउनवर्ड। सो हेयर वी आर यूजिंग क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ये सोर्स है जहाँ से हम चार्ज पार्टिकल सेंड करेंगे जिनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो वेलोसिटी वेक्टर है, they all are perpendicular to each other. So the velocity selector is a device consisting of perpendicular electric and magnetic fields that can be used as a velocity filter for charged particles. तो इस सेटअप से सर्टन वेलोसिटी वाले ही चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, और जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज़्यादा है या फिर कम है, उनको ये ऊपर वाली और नीचे वाली प्लेट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। This we will see that how will it happen. तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लेंगे that are emitted by the source of different velocities, लेकिन यहाँ से बाहर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले ही चार्ज पार्टिकल्स आएंगे। So the particles with correct speed, that is the desired speed that we need, will be unaffected, मतलब उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे सीधे बाहर जाएंगे। While other particles will get deflected, और जिन पार्टिकल्स की ये वाली वेलोसिटी नहीं है वो या तो ऊपर वाली प्लेट पे चले जाएंगे या फिर नीचे वाली प्लेट पे चले जाएंगे। Now any charge particle in electric field will experience a force which is proportional to the magnitude of charge and the electric field strength. So the force exerted on a charged particle by the electric field is given by Fe, which is equal to Q into E. तो होगा क्या कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। इट्स टेंडेंसी विल बी to go in the downward direction due to perpendicular electric field. But only electric field is not acting, यहाँ पे magnetic field भी तो लग रहा है, and magnetic field का जो magnitude होता है that is QVB sin theta. अब अगर आप यहाँ पे देखो that velocity is in this direction, magnetic field is in inward direction, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो magnitude of force will be equal to Q into V into B. So the magnitude of force exerted by the magnetic field will be equal to Q into V into B. अब हमने देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल को किस डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो जब भी हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था दैट वी विल यूज़ राइट हैंड पाम रूल। So we will place our palm in the direction of magnetic field. So here magnetic field is perpendicular to plane of paper inwards, and we will place our thumb in the direction of velocity of charge particle. तो अपनी palm पे जो हम perpendicular draw करेंगे वो हमें force की direction देगा। तो मतलब यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो upward direction में लगेगा due to magnetic field. So here we have a charge particle. It is moving with velocity v. Magnetic field is in this direction. सो मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी होगी तो कि ये चार्ज पार्टिकल को ऊपर को लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो Fe है इट्स टेंडेंसी इज़ टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ये जो Fb है उसकी टेंडेंसी है टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप सोच के देखो कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दें, अगर हम Fb Fe के इक्वल कर दें तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो, और वो अनडेविएटेड यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो इफ़ वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस आर इक्वल, देन टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज़ ज़ीरो। इसका मतलब वो पार्टिकल्स यहाँ से फिल्टर होंगे जिनके लिए Fb Fe के इक्वल होगा, that is QE should be equal to Q into V into B. So this implies that velocity of charge particle will be equal to E by B. तो इसका मतलब जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E by B रेशियो की इक्वल आएगी वो वाले पार्टिकल्स यहाँ से सीधा पास कर जाएंगे।
अब देखो, हम इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एफ ई कितना है क्यू इंटू ई, एफ बी कितना है क्यू इंटू वी इंटू बी। अब मान लो हमारे पास ऐसे चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज़्यादा है, मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है वी डैश एंड इट इज़ ग्रेटर देन वी। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी पे कौन सा फोर्स डिपेंड करता है, एफ बी। मतलब इन चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो एफ बी है वो ग्रेटर देन एफ ई हो जाएगा, क्योंकि एफ ई तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज़्यादा होगी वो अपर प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एफ बी ग्रेटर देन एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ से कौन से चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएंगे, जिनके लिए जो वेलोसिटी है दैट इज़ ग्रेटर देन वी। अब जिनकी वेलोसिटी v डैश लेस देन v होगी, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम होगी, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए f तो उतना ही रहेगा बिकॉज ये तो चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन एफ बी कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एफ बी भी डिक्रीज़ होगा। सो इन दिस केस एफ बी विल बी लेस देन एफ ई। तो उन पार्टिकल्स के लिए पाथ ये हो जाएगा, वो ये वाली प्लेट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो v डैश अगर लेस देन v है तो ये वाले पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो ऊपर वाली प्लेट की तरफ जाएंगे, और जो डिज़ायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स हमें चाहिए वो बाहर अनडेविएटेड यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और लेकिन उनके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए दैट एफ ई शुड बी इक्वल टू एफ बी एंड the velocity should be equal to ratio of E and B. So this is how we can filter the particles of desired velocity.